For the protection of wildlife, this is very important that we need funds. And for the funding, there must be certain external sources. For that, there is a long list of organizations जो nationally और internationally work out कर रही हैं और wildlife को protect कर रही हैं. So for the conservation of threatened and endangered species and even ecosystem, this is a need of an hour to involve international agencies. The agencies provide financial and technical assistance. The very first agency जो बहुत देर से काम कर रही है, that is Wildlife Conservation Society, and it was working since 1895. इस एजेंसी ने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं जो 60 नेशंस तक जिनकी वुसअत है, and they are intending to help and protect wildlife as well as the wild places. यानी जो एनिमल्स जिस जगह पर उनका नेचुरल हैबिटेट है, कोशिश ये की जा रही है कि उनको उनकी जगहों को और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंड्स दिए जाएं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए ताकि उन एनिमल्स की कंजर्वेशन हो सके. इन एनिमल्स में जो इस सोसाइटी के थ्रू प्रोटेक्ट हुए हैं, इस सोसाइटी के थ्रू कंजर्व किए गए हैं, उनमें गोरिल्लास, टाइगर्स एंड इवन ओशन जायंट्स शामिल हैं. Another agency that is called PAWS, जो शिकागो में linked है, and it provides healthcare and rehabilitation to wild animals. Actually, what is happening that sometimes wild animals are actually beaten. Rather, sometimes वो ऐसी जगहों पर कहीं फिक्स हो जाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि उनको आप हेल्प आउट नहीं कर सकते. समटाइम्स एनिमल को, पर्टिकुलरली पेट्स को, अगर वो प्रॉपरली घरों में सही एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर रहे, उनको घरों से निकाल दिया जाता है. सो दे आर एक्चुअली हेल्पलेस. सो उन एनिमल्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करती है ये पाज इंटरनेशनल एजेंसी, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो शिकागो में प्रेजेंट है. इसी नाम से पाकिस्तान में भी एक एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है जिसका नाम है पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी. दिस इज अगेन कॉल्ड एज पाज, और इसका पर्पस ये है दैट इट इज एम टू क्रिएट एन इक्विटेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन पाकिस्तान. मतलब हमने एनिमल्स को ह्यूमनली ट्रीट करने की जो स्ट्रेटजी है वो ये सोसाइटी वाले या ये ऑर्गेनाइजेशन वाले अपना एम रखते हैं, और इसको इनकरेज करने के लिए वेरियस तरह के सेमिनार्स भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. Another very important is called Gorilla Doctors. It is in 1980s. This was by a veterinarian, Dan Fossey. Team of veterinarians that care for mountain gorillas of Rwanda, Uganda, and National Republic of Congo. Basically, this is just for the protection and conservation of gorilla and their habitats. Another is Wildlife Alliance, which is in 1994. It is for the protection to forests and wildlife in Southeast Asia tropical belt. They are only related with this particular area. वहाँ पर जो भी वाइल्ड स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है या उसकी हैबिटेट है, उसकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए दिस अलायंस इज वेरी मच हेल्पफुल. Another is International Fund for Animal Welfare. This was founded in 1969. It rescues and protect animal around the world. Their main aim is to rescue and the protection of animals. वो चाहे दुनिया के जिस मर्जी एरिया में हो, ये उसको प्रोटेक्ट करने इनकी टीम डेफिनेटली वहाँ जाती है, और एनिमल्स को जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो उनको दी जाती है. दे एक्चुअली सेविंग द सील्स, वेल्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, जो इनके सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं. इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन थ्रेटेंड स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया हुआ है. Another very significant name is WWF, that is World Wildlife Fund, और ये 1961 में अपीयर हुई थी. इनका पर्पस टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर in which human live in harmony with the nature. Basically, they aims that we must protect and conserve nature as well as natural beauty, so that human और जो animals हैं उनका conflict ना हो.
World Society for Protection of Animals, this promote the treatment of animals and good animal welfare. Again, they just give the better options, better treatments to the problematic animals. They guarded the whales, bears, orangutan. Another society is called African Wildlife Foundation, जो 1961 में आई, और इन्होंने ये इंश्योर किया कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लैंड ऑफ अफ्रीका जो है वो बिल्कुल ठीक काम करें. इन्होंने वहाँ के एलिफेंट्स को एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है. एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट दैट अपीयर्स इन 1951, इन्होंने एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन डेट्रीमेंटल टू एंडेंजर्ड स्पीसीज. हर एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ ह्यूमन के कन्फ्लिक्ट को कम से कम करने की कोशिश की गई. Very important and significant international agency which is helpful in conserving and protecting the wild animals as well as plants is WWF, that is Worldwide Fund for Nature. This is world's largest voluntary organization and it is set up in 1961. इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करता है और जो सिंबल इसको दिया गया है दैट इज पांडा. इस पांडा की बैकग्राउंड एक्चुअली ये है दैट इट वाज द ओनली स्पीशीज एट दैट टाइम जो एंडेंजर्ड थी, जिसको शिफ्ट किया जा रहा था फ्रॉम चाइना टू लंदन ज़ू. सो उस वक्त वो जो पांडा था एक्चुअली उनको ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड सिंबल के लिए रिक्वायर्ड थी. दैट वाइज द पांडा वाज सिलेक्टेड एज अ सिंबल. Previously, the WWF is actually World Wildlife Fund, but in 1990s it was renamed as Worldwide Fund for Nature. So, जब उन्होंने इसके एब्रीवेशन को या इसकी फुल फॉर्म को चेंज किया है तो साथ ही उन्होंने इसका मिशन स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया. एंड द मिशन स्टेटमेंट इज नाउ स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू बिल्ड अ फ्यूचर इन विच ह्यूमन लिव इन हार्मनी विद नेचर. सो बेसिकली हम सिर्फ एनिमल्स की कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, इसमें नेचर की प्रोटेक्शन की बात भी की जा रही है, सो दैट बोथ द वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नेचर इज मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट सो दैट ह्यूमंस वहां से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हासिल कर सकें. मिशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अगर हम जितनी भी स्पीशीज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं प्लैनेट में, जब तक हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, हमारा मिशन या WWF का मिशन कंप्लीट नहीं होता. सिमिलरली इंश्योरिंग दैट द यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इज सस्टेनेबल, कि हमें जो भी रिसोर्सेज यूज करने हैं वो रिन्यूएबल पैटर्न पे करने हैं ताकि उनको जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर किया जा सके. एंड वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स अगर उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन होती रहे तो. प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजम्पशन. बेसिकली अगर पोल्यूशन हम काज कर रहे हैं तो वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट्स एंड इवन उनकी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होती है. सो वो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है that may not become into a non-renewable resource. So, to avoid pollution is mandatory to conserve the nature as well as wildlife. This organization, it raises funds for urgent conservation requirement. जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होती है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वॉलंटरीली लोग इसमें काम कर रहे हैं और वॉलंटरी मेंबर्स हैं, वो फंड्स जनरेट करते हैं, फंड रेज करते हैं. उसके लिए इवन दे गिव सर्टन कैंपेन्स, कुछ एजुकेशनल टूर्स लगवाए जाते हैं, कुछ इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है जस्ट टू रेज फंड्स. सो प्रमोटिंग कंजर्वेशन थ्रू वाइल्ड लाइफ एजुकेशन कैंपेन एंड पब्लिक कॉन्शियसनेस. WWF में जो इसका जनरल पैटर्न है वो एक पर्टिकुलर कमेटी होती है एंड द कमेटी कंटेन्स एन एग्जीक्यूटिव कमेटी कंप्राइजेस अ प्रेसिडेंट as well as 10 members of the board of trustee of WWF. They all are responsible for the administration of the funds. जो भी funds आएंगे वो board का member and as well as the president, they are responsible for it. Again, this is very important. Sometimes board का जो president है वो ये भी decide कर सकता है that the members may exceed or the members they may came from various institutes, they may came from various fields, they may be researchers, they may be teachers, ताकि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियंस को, उनकी टेक्निकलिटीज को यूटिलाइज करके कंजर्वेशन प्लान्स लाए जा सके. WWF is collaborating with other
certain national और international organization जिनमें IUCN is very important, UNO के साथ ये collaborate करते हैं, UNESCO के साथ collaborate करते हैं, UNEP के साथ collaborate करते हैं, and FAW के साथ भी collaboration है. Rather FAO is again one of the agency जो इनकी collaboration में है, just to raise the funds as well as to implement the things जो wild organisms के लिए, उनकी conservation के लिए ज़रूरी होती है. One of the leading conservation agency for wildlife as well as nature is called IUCN. That is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. We need actually the help of agencies just for funds and technical assistance. So it is founded in 1948. This is one of the leading NGO, and it has a network with government as well as non-government organizations. IUCN के members की तादाद बहुत ज़्यादा है और इसमें 475 member organizations included हैं. 116 government agencies हैं जो 133 countries overall में काम कर रही हैं. So again it's a very huge agency जिसने conservation और protection करनी है नेचर की एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज की. इसके मेजर फंक्शंस में मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ कंजर्वेशन, डेवलपिंग प्लान्स फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स सच एज वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड प्रमोटिंग एक्शन ऑन देयर प्लान्स बाय गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस. यानी बेसिक पर्पस इज टू कंजर्व द नेचर एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज. नेचर इट में इंक्लूड्स द नेचुरल हैबिटेट as well as the wild animals and plants there. Another very important function is the coordination or communication between the members as well as commission and to implement the decisions जो होते हैं या जो decide होते हैं कि किस तरह conservation को perform किया जाए, किस तरह organisms को protect किया जाए. It also provide advice and assistance to complement conservation measures. Selection and management of WWF projects. Actually, IUCN, because it's a larger agency, it's a larger funding agency, and WWF जो इसके साथ collaboration में काम करती है, क्योंकि ये बड़ी एजेंसी है, इसके पास फंड्स की तादाद ज़्यादा होती है, इसीलिए ये अपने साथ अटैच या कोलैबोरेटिव एजेंसीज को भी फंड प्रोवाइड करती है. सो ये इसीलिए उनके फंडिंग हेड्स को भी देख रही होती है. इट मैनेजेस द UNEP एंड साइट्स सेक्रेटेरिएट. ये दो भी एजेंसीज हैं जो कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं, किसी ना किसी तौर पर नेचर की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं. ये उनके लिए भी IUCN एक बिग नेटवर्क प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन वर्क वेल. It is performing the continuing duty under conservation of wetlands of international importance, especially by waterfowl habitat. This IUCN is also actually providing a red data list, जिसको आप रेड बुक कहते हैं, जो endangered या threatened species की एक लिस्ट ये अपडेट करते हैं और उससे ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से एनिमल्स प्रॉब्लम में हैं. सिमिलरली इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि वेटलैंड्स जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स इन पर्टिकुलर आकर वहाँ पे इस्तेफादा हासिल करते हैं, उसको अपनी जगह बनाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को भी ये बहुत ज़्यादा देखते हैं और कोशिश की जाती है कि उनको ह्यूमन इंटरवेंशन से या पोल्यूशन से बचाया जा सके. स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल कमीशन विच इज़ वर्किंग अंडर IUCN. IUCN is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, जो एक बड़ी फंडिंग एजेंसी है जो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है और कंजर्व करती है. इस कमीशन का जनरल मैंडेट एक्चुअली जो भी वर्ल्ड ने आपस में कंसेंसस करके कुछ चीज़ें डेवलप की हुई हैं, दैट वी हैव टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट the nature and natural resources. So the commission shall conduct its activities in accordance with its mandate as established by World Conservation Congress. The major aim of the
Species Survival Commission is to conserve biological diversity by developing and executing programs of study, save, restore, and manage wisely the species and their habitats. So basically, जो भी species हैं, चाहे वो endangered हैं, चाहे वो threatened हैं, चाहे वो freely available हैं या easily available हैं, उनका number काफ़ी ज़्यादा है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कंजर्व करना है, उनकी नेचर ऑफ हैबिटेट को डिस्ट्रॉट नहीं करना, उनमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम करनी है, ये बेसिक एम है इस कमीशन का. द विजन एक्चुअली इज अ जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर थ्रू पॉजिटिव एक्शंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बिकॉज वंस द स्पीशीज हैज लॉस्ट और you can say it is extinct from the world, हम उनको retrieve नहीं कर सकते. Like dinosaurs, now they are extinct, we cannot retrieve them. Similarly, the major vision of this Species Survival Commission is to reduce the loss of diversity of life on Earth. हमें किसी भी तरह इस biological diversity को sustain करवाना है और इसको conserve और protect करना है, और इसके लिए humans की intervention अगर कम से कम होगी तो ये organisms exist करेंगे, survive करेंगे. The major goal of this commission is the species extinction crisis and massive loss of biodiversity are universally adopted as a shared responsibility and addressed by all sectors of society, taking positive conservation actions and avoiding negative impact worldwide. Again, the goal is to conserve the nature and natural resources. हमें पॉजिटिवली उन चीज़ों को देखना है, हम लोगों को एजुकेट करें अबाउट वाइल्ड लाइफ, हम लोगों को ये बताएं कि वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं, ताकि हम उन वाइल्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकें एज अ होल. अगर उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो हमें उनको कम से कम एलाबोरेट करना चाहिए ताकि लोग उनकी कंजर्वेशन की तरफ ज़्यादा माइल हों. The major objectives of this commission is assessing and monitoring biodiversity. Basically, किसी भी जगह पर जहाँ पर organisms exist कर रहे हैं, उनका number count करना is also very important, और ये देखना कि जिस habitat में वो survive कर रहे हैं, is it suitable to them? क्या वहाँ उनको कोई problem तो नहीं है? Analyzing the threats to the biodiversity. Again, the threats includes actually the loss of habitat. It is an estimate that 85% of the species वो endangered या threatened species में आते हैं just because of the loss of the habitat, और ये सिर्फ और सिर्फ human की intervention की वजह से हो रहा है. Facilitating and undertaking conservation actions. अगर वहाँ किसी problem में है organisms, उनको किसी ना किसी तरह हम facilitate करें, उनको rehabilitate कर सकते हैं और उनको conservation strategies provide करके हम उनको protection की तरफ ले जा सकते हैं. Convincing expertise for biodiversity conservation. किसी भी तरह हमें किसी टेक्निकल टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए, हमें किसी फाइनेंशियल बर्डन को पूरा करने के लिए एजेंसीज को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स अपनी सर्वाइवल की तरफ जा सकें और उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन हो सके. स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन is actually one of the commission which is working under large umbrella of IUCN. Major achievements जो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन ने अब तक परफॉर्म की हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है द फॉर्मेशन एंड अपडेट ऑफ रेड डाटा बुक, द IUCN रेड लिस्ट. इसको रेड बुक भी कहते हैं, जिसने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को और थ्रेटेंड स्पीशीज़ की एक लिस्ट अपडेट करते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, सो दैट जो कंजर्वेशनिस्ट हैं दे हैव एन आइडिया दैट व्हाट टाइप एंड व्हाट नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर इन प्रॉब्लम. स्पीशीज़ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, ये जो स्पीशीज़ प्रॉब्लम में है, जो स्पीशीज़ थ्रेटेंड हैं, उनके लिए कंजर्वेशन प्लान्स ये कमीशन प्रिपेयर करता है, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है, एंड सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूल्स. हर वो स्ट्रेटेजिक प्लान जो किसी स्पीशीज़ के लिए इन पर्टिकुलर होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोटेड that is it environmental friendly, is it suits to the environment, तब उसको implement करने की इजाज़त दी जाती है. Currently जो
स्ट्रेटजीज स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन परफॉर्म कर रहा है उनमें इंटरडिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, उनमें द यूज ऑफ IUCN एंड रेड लिस्ट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो ये ईयरली बेसिस पे परफॉर्म होता है, एंड दिस इज द बिग अचीवमेंट जो इस कमीशन ने अब तक परफॉर्म की हुई है. इंक्रीजिंग द टेक्सोनॉमिक कवरेज ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन. इन तमाम की तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस कमीशन के लिए कि उनको फ्यूचर में एनिमल्स के साथ या एनवायरनमेंट के साथ उनकी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. तो इस हवाले से द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पॉन्स ऑफ द स्पीशीज टू क्लाइमेटिक चेंज, बिकॉज द स्पीशीज एक्चुअली समटाइम दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऑब्वियसली जब वो अपनी जगह चेंज करते हैं वहाँ पे क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का चेंज आता है, और वो किस तरह रिएक्ट करते हैं उस जगह पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एरिया बेस्ड कंजर्वेशन प्लानिंग, अगेन हैबिटेट ऑर्गेनिजम्स की किस तरह की है उसके मुताबिक क्या कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, क्या प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज परफॉर्म की जाएं कि एनिमल अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करे. बिकॉज समटाइम्स इन अ कंजर्वेशन ex-situ कंजर्वेशन परफॉर्म करवानी पड़ती है, समटाइम in-situ कंजर्वेशन परफॉर्म करवानी पड़ती है. सो अगेन इट इज अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म या ऑफ द स्पीशीज के उसको क्या स्ट्रेटजी देनी पड़ेगी. रैपिड डिक्लाइन ऑफ लार्ज एनिमल्स इन एशिया, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एशियाटिक क्लाइमेट बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है. इस वजह से जो यहाँ पर स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनको भी डिक्लाइन का सामना है. सेव आवर स्पीशीज, जिसको आप SOS कहते हैं, एज पर डिमांड स्पीशीज के मुताबिक, उनकी हैबिटेट के मुताबिक उनको कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके. देयर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन दैट इट इज गवर्न्ड बाय अ स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें हेडेड बाय अ कमीशन चेयर. बेसिकली एक चेयरमैन होता है और अगेन साथ इसके बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं. दी मेंबर्स एक्चुअली इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स. ये ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं जो जिस तरह एक ग्रुप में समटाइम सिर्फ और सिर्फ वो वर्किंग कर रहे हैं फ्रेश वाटर के ऊपर, कुछ ऐसा ग्रुप है जो वर्किंग कर रहा है बर्ड्स के ऊपर. सो अकॉर्डिंगली द ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. SSC done its work by specialist groups like Red List authorities and task force. There is a bird group, there is a freshwater fish specialist group. इन ग्रुप्स का बेसिक पर्पस ये है कि इन्होंने आपस में लिंक अप करके काम करना है. अगर इन पर्टिकुलर इन दो ग्रुप्स की बात की जाए जिसमें बर्ड ग्रुप है और फ्रेश वाटर फिश ग्रुप है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू वेटलैंड्स बनता है, क्योंकि वेटलैंड पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और किस तरह वेटलैंड को कंजर्व करें, किस तरह वेटलैंड को प्रोटेक्ट करें ताकि वहाँ पे बर्ड्स आगे सर्वाइव करें और अपनी वेल बीइंग को मेंटेन कर सकें. इस हवाले से इन ग्रुप्स का आपस में एक लिंक होना बहुत ज़रूरी है, जो इस कमीशन के थ्रू एक लिंक डेफिनेटली डेवलप हो जाता है. देयर आर करंटली 112 स्पेशलिस्ट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन मेंबर्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. At the end of the 2011, there is an estimate that there are about 8,000 members जो इसमें काम कर रहे हैं. Individual members are invited to join the chair of each group. Definitely voluntary भी इसमें लोगों की वर्किंग होती है और voluntarily जो लोग आके इस कमीशन को ज्वाइन करते हैं शायद वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं. And it is the decision of the chair दैट किन मेंबर्स को ऑप्ट करना है और किन मेंबर्स को ऑप्ट नहीं करना.